नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। माता जी कैन रीड फ्रॉम हाँ जी, हाँ, मैं स्टार्ट करूं पढ़ना? जी हेलो, माता जी। मैं मोबाइल से ज्वाइन किया है थोड़ा। It हाँ is जी not माता जी आप that स्टार्ट। अच्छा, it is not that Bhagavad Gita rejects the meditational yoga process. It recognizes it as a bona fide method, but it further indicates that it is not possible at this age. Thus, the subject in the 6th chapter of Bhagavad Gita is quickly dropped by Sri Krishna and Arjuna. Arjuna asks, Ayatiha Shraddhayopeto Yogaschalita Manasah Aprapya Yoga Samsiddhim Kam Gatim Krishna Gacchati. What is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization, but who later this is due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism. Bhagavad Gita 6.37. In other words, he is asking what becomes of the unsuccessful yogi or the person who attempts to perform yoga, but in other words, he is asking somehow desist of school. Elsewhere in the Gita, Sri Krishna points out to Arjuna that out of many men, few strive for perfection, and out of those who strive for perfection, only a few succeed. So Arjuna is inquiring, after the vast number of failures, even if a man has faith and strives for perfection in the yoga system, Arjuna points out that he may not attain this perfection due to worldly mindedness. तो यहाँ पे दिया है कि भगवत गीता मेडिटेशनल योगा प्रोसेस जो है मतलब ध्यान योगा उसको रिजेक्ट नहीं करती कि ये सही नहीं है, वो सही है, लेकिन इस युग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है वो। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर कोई योग में लगा हुआ है और कुछ मटेरियल डिजायर्स की वजह से, कुछ इरिटेशंस की वजह से अगर उसका फॉल डाउन हो जाता है तो क्या वो कभी अब परफेक्शन अटेन नहीं कर पाएगा? मतलब जो जिस योगी का फॉल डाउन हो गया बेसिकली उसका आगे क्या उसके साथ आगे क्या होने वाला है? इन अदर वर्ड्स ही इज आस्किंग व्हाट बिकम्स ऑफ अनसक्सेसफुल योगी और द पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म योगा बट समहाउ डेसिस्ट और डज नॉट सक्सीड। ओके, तो अभी अर्जुन यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्यू टू सम एजिटेशंस अगर किसी का फॉल डाउन हो जाएगा तो उसका क्या होने वाला है आगे। ओके, अब नेक्स्ट आगे भगवान बताएंगे कि क्या होने वाला है। माता जी आगे पढ़ लो। वहां से ओ माइटी, वहां से कहां से पढ़ना है माता जी? हाँ, उसके ऊपर वाला श्लोक भी पढ़ना है। अच्छा, ऊपर वाला श्लोक पढ़ना है। ओके, कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस्। अच्छा, चिन्ह। ओके, कश्चिन, एक मिनट। कश्चिन्नो भय विभ्रस्तस् चिन्ह भ्रम इव नश्यति अप्रत्यस्तो महाभावो बाहो विमुधो ब्रह्मणः पति। O mighty armed Krishna, Arjuna continues, does not such a man, being deviated from the path of transcendence, perish like a driven cloud with no position in any sphere?
Bhagavad Gita 6.38. When a cloud is torn apart by the wind, it does not mend back together again. Etanme samasyam Krishna chittum chetum arahasya asesatah tvad anyayah samsayasya cheta na hi upadpadyate. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. Bhagavad Gita 6.39. Arjuna is asking this question about the fate of the unsuccessful yogi so that in the future people would not be discouraged. By a yogi, Arjuna is referring to the Hatya Yoga, Jnana Yogi, and Bhakti Yogi. It is not that meditation is the only form of yoga. The meditator, the philosopher, and the devotees are all to be considered yogis. Arjuna is questioning for all those who are attempting to become a successful transcendentalist. And how does Sri Krishna answer him? Hare Krishna. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हाँ, अभी तो मेरा नेटवर्क आज थोड़ा ठीक है अभी आंसर हिम तक पड़ा है यहाँ पे हाँ ठीक मैं बता कच्चिन नोभय विभ्रस्तस चिन्नाभ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण्यः पति। O mighty armed Krishna, Arjun continues, does not such a man being deviated from path of transcendence perish like a river cloud with no position in any sphere? When a cloud is torn apart by the wind, it does not mend back together again. तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि क्या अनसक्सेसफुल योगी के साथ ये होता है कि वो एक बादल जैसे हवा के कारण फैल जाता है ना, फिर वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, वापस से वो कंप्लीट क्लाउड नहीं बन सकता? क्या उसके साथ ऐसा होता है कि वो वापस कभी अब योगा में नहीं आ पाएगा या फिर वो कभी अब सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे नहीं चल पाएगा? फिर आगे एतान में माता जी योगी के बारे में बोल रहे हैं कि अगर योगी अगर वो डिस्कंटिन्यू करता तो विल नॉट बी एबल टू जॉइन अगेन, ऐसा करके पूछ रहे थे अर्जुन, है ना? जी माता जी, हाँ। एतान में संशयम कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषतः त्वद अन्यः संशयस्य चेता न हि उपपद्यते। This is my doubt to Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. अर्जुन कृष्ण से डाउट पूछ रहे हैं, और ये केवल मेडिटेशनल योगा के लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस हर प्रकार के योगियों के लिए, जो चाहे वो हठ योगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, ये सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। The meditator, the philosopher, and the devotee all are to be considered yogis. Arjun is questioning for all those who are attempting to become successful transcendentalists. And how does Shri Krishna answer him? तो आप कृष्णा आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को कि योगी का क्या होता है। सौम्य माता जी, आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। Here, as in many other places throughout the Gita, Sri Krishna is referred to as Bhagwan. This is another of the Lord's innumerable names. Bhagwan indicates that Krishna is the proprietor of 6 opulences. He possesses all beauty, all wealth, all power, all fame, all knowledge, and all renunciation. Living entity family, in a town, in a country, or on one planet, but no one is famous throughout the creation, as is Sri Krishna. The leaders of the world may be famous
for a few years only, but Lord Sri Krishna appeared 5,000 years ago and is still being worshipped. So, one who possesses all six of these opulences in completeness is considered to be God. In Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjun as the supreme personality of Godhead, and as such, it is to be understood that he has complete knowledge. Bhagavad Gita was imparted to the sun god and to Arjun by Krishna, but now here it is mentioned that Bhagavad Gita was imparted to Krishna. Why? Incomplete knowledge means that he knows everything that is to be known. This is an attribute of God alone. Being that Krishna knows everything, being that Krishna knows everything, Arjuna is putting putting this question to him about the fate of the unsuccessful yogi. There is no possibility of Arjun to research the truth. He simply has to receive the truth from the complete source, and this is the system of disciplic succession. Krishna is complete, and the knowledge that comes from Krishna is also complete. If Arjun receives this complete knowledge and we receive it from Arjun as it was spoken to him, then we also receive complete knowledge. And what is this knowledge? The blessed Lord said, Son of Parth, Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never become by evil. BG 6.40. Here Krishna indicates that the very striving for yoga perfection is a most auspicious attempt. When one attempts something so auspicious, he is never degraded. Okay. श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. Here, as in many other places throughout the Gita, Shri Krishna is referred to as Bhagavan. There is another of the Lord's innumerable names. Bhagavan indicates that Krishna is the proprietor of six opulences. He possesses all beauty, all wealth, all power, all fame, all knowledge, and all renunciation. तो ये 6 opulences जिसके पास भी completeness में है ना, उसे भगवान कहा जाता है. क्या क्या है 6 opulences? ब्यूटी, वेल्थ, पावर, फेम, नॉलेज एंड रिनंसिएशन. ये कंप्लीटनेस में किसमें है? केवल कृष्ण में है. लिविंग एंटिटीज पार्टेक ऑफ दीज opulences in finite degrees. One may be famous in a family, in a town, or in a country, or on one planet, but one is famous. No one is famous throughout the creation as is Shri Krishna. तो कोई कह सकता है कि मैं ऑल फेमस हूँ, उससे तो पूरी पृथ्वी पे सब जानते हैं. मान लो एलॉन मस्क है, ऑल फेमस, उससे सब हर कोई जानता है पृथ्वी पे. लेकिन कृष्णा जितना फेमस नहीं हो, क्योंकि कृष्णा को पूरे यूनिवर्स में हर कोई जानता है. एलॉन मस्क को केवल इस प्लेनेट के लोग जानते हैं, पूरे यूनिवर्स के लोग नहीं जानते. But the leaders of the world may be famous for a few years only, but Lord Shri Krishna appeared 5,000 years ago and is still being worshipped. तो मान लो कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छा बिजनेस करा है और उसे लोग जानने लगे, लेकिन वो जब तक है उसे लोग जानेंगे. मान लो अगर उसकी डेथ भी हो गई तो कुछ सालों तक लोग जानेंगे. लेकिन कोई ऐसा है जिसकी डेथ 5,000 साल पहले हुई थी, फिर भी लोग उसे मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं. ऐसे केवल कृष्ण है जो 5,000 साल पहले आए थे, लेकिन लोग अभी भी उनकी कही हुई चीजों को पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी पूजा करते हैं. So one who possesses all six of these opulences in completeness is considered to be God. In Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjun as the supreme personality of Godhead, and as such, it is to be understood that he has complete knowledge. Bhagavad Gita was imparted to Sun God and to Arjun by Krishna, but nowhere it is mentioned that Bhagavad Gita was imparted to Krishna. Why? Complete knowledge means that he knows everything that is to be known. तो भगवत गीता हमने पहले भी पढ़ा है कि गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू पढ़नी चाहिए. मतलब किसी ने कृष्णा ने ब्रह्मा जी को सिखाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सिखाई, ऐसे करके पूरी परंपरा में आ रहा है सब कुछ, पूरा स्पिरिचुअल ज्ञान. लेकिन हमने ये भी सुना है कि अर्जुन को कृष्णा ने बोला, और अर्जुन से पहले भगवान ने बहुत पहले सन गॉड सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी भगवद गीता. लेकिन क्योंकि
वो गुरु शिष्य परंपरा डिस्टॉर्ट हो गई थी, बीच में कुछ डिस्टॉर्शंस आ गए, तो वो ज्ञान लुप्त हो गया था। इसलिए भगवान ने फिर से अर्जुन को सुनाई, ताकि वापस से सबको एनलाइटन किया जा सके। लेकिन कभी हमने ये सुना कि कृष्णा को किसी ने भगवत गीता सिखाई हो? मान लो हमें तो हमारे सीनियर्स ने सिखाई है, उनको उनके गुरुदेव ने सिखाई है, लेकिन कृष्णा को आज तक किसी ने नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि कृष्णा के पास कंप्लीट नॉलेज है, उन्हें किसी और से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ पहले से जानते हैं। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड अलोन, बीइंग दैट कृष्णा नोज एवरीथिंग, अर्जुन इज putting this question to him about the fate of unsuccessful yogi. There is no possibility for Arjun to research the truth. He simply has to receive the truth from the complete. स्पिरिचुअल नॉलेज को खुद से गेन करना रिसर्च करके पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, हम अपने सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं और सुप्रीम ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम जो नॉलेज गेन करते हैं इन सेंसेस से वो भी इम्परफेक्ट है। तो हमें कभी भी परफेक्ट नॉलेज के मतलब हम सुप्रीम ट्रूथ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते असेंडिंग प्रोसेस से। लेकिन डिसेंडिंग प्रोसेस में क्या है, नॉलेज खुद कृष्णा से आ रहा है, वो खुद बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी सेवा कैसे करनी है। तो जब हम डिसेंडिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होता है। और इसे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज हमारे तक कैसे आएगा, थ्रू डिसाइप्लिक सक्सेशन। कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, ऐसे करके नारद जी ने व्यास देव को, ऐसे पूरी डिसाइप्लिक सक्सेशन चलती आ रही है हम तक। उससे हमें ये ज्ञान मिल रहा है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। बीच में कोई भी, हम भी अगर किसी को ये ज्ञान दे रहे हैं तो हमें भी बीच में डिस्टॉर्शन नहीं करने, जैसा हमें बताया गया है स्क्रिप्चर्स में सेम टू सेम वैसा रिपीट करना है, कुछ भी अपना मैन्युफैक्चर नहीं करना है। Krishna is complete and the knowledge that comes from Krishna is also complete. If Arjun receives this complete knowledge and we receive it from Arjun as it was spoken to him, then we also receive complete knowledge. And what is this knowledge? The blessed Lord said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. तो भगवान यहाँ पे आंसर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो अपने सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में लगा हुआ है, अगर वो उसका फॉल डाउन हो भी जाता है तो भी उसके लिए कुछ बुरा नहीं है, उसका इस मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। जो हमेशा गुड अच्छे के लिए कर रहा है उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में लगे, कृष्णा ना हमसे भी ज्यादा ईगर है हमको अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन हम ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई जीव थोड़ा सा भी कोशिश करता हुआ दिखता है ना कि वो कृष्णा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो कृष्णा उसको पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रोसेस से भटक न जाए। और अगर भटक भी जाता है तब भी उसके बाद भी कृष्णा उसको प्रोटेक्शन देते। कैसे? मान लो कोई मटेरियल चीजों में उसका मन लगने लगा, उसका फॉल डाउन हो गया, उसका संसार में बहुत मन लग रहा है, कृष्णा उसे संसार में इतना दुख देंगे कि उसको वापस से कृष्णा के पास ही आना पड़ेगा। तो ये कृष्णा का प्रोटेक्शन देने का तरीका है। ये ऐसा क्या बहुत एडवांस डिवोटीज के साथ ही होता है कि उसका मटेरियली बहुत सब कुछ खत्म हो गया है तो पूरा भगवान पे डिपेंडेंट हो जाए। हम जैसे लोगों को भगवान कोशिश करते हैं कि हम भक्तों के एसोसिएशन में बने रहे, क्योंकि ज्यादा दुख आएगा तो हम तो कृष्णा को छोड़ देंगे। अभी हमारी उतनी निष्ठा नहीं है भगवान के प्रति। Here Krishna indicates that very striving for yoga perfection is the most auspicious attempt. When one attempts something so auspicious, it is never degraded. तो सबसे ज्यादा auspicious चीज क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोशिश करना। और जब कोई ये कोशिश करता है तो वो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता। ओके, आगे नवकिशोरी माता जी आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा शुड आई यहाँ रीड? से पढ़ना है एक्चुअली। जी माता जी। ओह जी जी। जस्ट sorry माता जी, I went to fetch my glasses, specs. हरे कृष्ण। We received it. Should I start from there or actually Arjuna is? No, Mataji, actually Arjun is asking. Okay.
Actually, Arjuna is asking is very appropriate and intelligent question. It is not unusual for one to fall down from the mm, platform of devotional service. Sometimes the neophyte devotee does not keep the rules and regulations. Sometimes he yield to intoxication or is trapped by fame, some feminine attraction. Though these are impediments on the path of the yoga perfection, but Sri Krishna gives an encouraging answers. For he tells Arjuna that even if one sincerely cultivates only 1% worth of spiritual knowledge, he will never fall down into the material whirlpool. That is due to the sincerity of his of his effort. It should always be understood that we are weak and that the material energy is very strong. To adopt spiritual life is more or less to declare was against the material energy. The material energy is trying to interrupt the conditions condition soul as much as possible. When the condition soul tries to get out of her clutches by spiritual advancement of knowledge, material nature becomes more stringent and vigorous in her efforts to taste how much the aspiring spiritualist is sincere. The material energy or maya will then offer more allurements. In this regard, there is a story of Vishwamitra Muni, a great king, a Kshatriya who renounced his kingdom and took to the yoga process in order to become more spiritual advancement. At the time, meditational yoga process was possible to execute. Vishwamitra Muni meditated so intently that Indra, the king of heaven, noticed him and thought, "This man is." Trying to occupy my post. The heavenly planets are also material, and there is competition. No businessman wants another businessman to exceed him. Fearing that Vishwamitra Muni would actually dispose him, Indra sent one heavenly society girl named Menka to allure him sexually. Manika was naturally very beautiful, and she was intent to disrupting the Muni's meditation. Indeed, he became aware of her feminine present upon hearing the sound of her bangles, and he immediately looked up from his meditation, saw her, and became captivated by her beauty. As a result, the beautiful girl Shakuntala was born by their conjugations. When Shakuntala was born, Vishwamitra lamented, "Oh, I was just trying to cultivate spiritual knowledge, and again I have been entrapped." He was about to flee when Menaka brought his beautiful daughter before him and chastised him. Despite her pleading, Vishwamitra resolved to leave anyway. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली अर्जुन इज आस्किंग अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन. इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर वन टू फॉल डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो यहाँ क्या बोला है कि बहुत अनयूजुअल में तो होता रहता है ऐसा फॉल डाउन. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट माता जी, 2 मिनट बजे. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि फॉल डाउन ना न्यूफाइड डिवोटीज का हो जाता है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाते, उनके वापस से पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं. मान लो किसी ने इंटॉक्सिकेशन छोड़ दिया था, लेकिन उसे एकदम से पुराने दोस्त मिल जाते हैं, उसे फिर से इंटॉक्सिकेशन की याद आती है, वो फिर से उसमें लग जाता है. ये बहुत खराब चीज है, फॉल डाउन होना बहुत खराब चीज है. लेकिन अगर फिर भी हो जाता है फॉल डाउन हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो भी कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट अस. These are impediments on the path of yoga perfection, but Shri Krishna gives an encouraging answer, for he tells Arjun that even if one sincerely cultivates only 1% worth of spiritual knowledge, he will never fall down to the material whirlpool. That is due to the sincerity of his effort.
तो ना मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारा सिंसियर एफर्ट मैटर कर रहा है। हो सकता है कि कोई बहुत कोशिश करता हो, उसका वो अपना 100% दे रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में, फिर भी उसका फॉल डाउन हो जाए तो ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर लेकिन अगर कोई फॉलो ही नहीं कर रहा सिंसियरली, जबरदस्ती फॉल डाउन करा रहा है, फालतू में मटेरियल चीजों में घुस रहा है, और फिर वो अगर ये एक्सपेक्ट करे कि उसकी प्रोटेक्शन होगी, लेकिन उसको ना टाइम लगेगा, क्योंकि कृष्णा उसको सिंसियर बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर जो पहले से सिंसियर है फिर भी उसका फॉल डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके उसे रियलाइज हो जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा। दैट इज ड्यू टू द सिंसियरिटी ऑफ हिज एफर्ट। तो हम क्या मैटर करता है, हमारा एफर्ट मैटर करता है। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं मान लो, और हम 100% अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा परफेक्टली नहीं कर पा रहे, तो भी कृष्णा और गुरु विल बी प्लीज्ड। क्यों? क्योंकि वो हमारा एफर्ट देखते हैं रिजल्ट से ज्यादा। मटेरियल लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं किसी भी चीज में, लेकिन गुरु और कृष्णा क्या देखते हैं, हमारा एफर्ट देखते हैं। it should be always it should always to be understood that we are weak and the material energy is very strong. To adopt a spiritual life is more or less to declare war against the material energy. The material energy is trying to entrap the conditioned soul as much as possible, and when the conditioned soul tries to get out of her clutches by spiritual advancement of knowledge, material nature becomes more stringent and vigorous in her efforts to test how much the aspiring spiritualist is sincere. The material energy or Maya will then offer more allurements. तो जब कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है ना, तो माया सोचती है अभी ये मेरे क्लचेस से निकल जाएगा, क्योंकि ये भगवान के शरण में जाने लगा है। भले ही अभी पूरा नहीं वो पहुंचा, लेकिन अगर उसने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो वो एक दिन कृष्णा के शरण में पहुंच जाएगा। तो माया क्या करती है, हमारी सिंसियरिटी चेक करने के लिए और ज्यादा हमारे सामने एल्योरमेंट्स डालती है, हमारे सामने एजिटेशंस डालती है कि ये जीव अगर सिंसियर है तो ये एजिटेटेड नहीं होगा, और अगर ये इनसिंसियर है तो ये पक्का एजिटेट हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर कोई अपने आप को बैलेंस कर लेता है माया के, और लेकिन माया के एजिटेशंस को ओवरकम करना ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा सिंसियर है तो ही वो कर सकता है, वरना हम जैसे लोग फॉल डाउन भी हो सकता है हमारे, जब हमारी माया परीक्षा लेगी। लेकिन माया पता है बहुत स्पेशल लोगों की परीक्षा लेती है। अभी हम लोग सोचते हैं ना हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो माया देवी हमारी परीक्षा ले रही है। माया देवी हमारी परीक्षा नहीं लेती, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारे ना कर्मा ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस कर्मा है उनकी जो फल अब हमें मिल रहे हैं उनसे हमें दुख मिल रहा है। जब कोई बहुत थोड़ा एडवांस हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में, तब माया देवी उसकी परीक्षा लेती है, और जब वो माया के भी सारे ऑब्स्टेकल्स को पास कर जाता है तब कृष्णा उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये सच में इतना सिंसियर है कि ये मेरे पास आ पाए। और जैसे हम जब दीक्षा लेते हैं, तो अगर हम दीक्षा लेने को डिसाइड कर रहे हैं दीक्षा लेने का, तो इट मीन्स कि हम माया देवी को बोल रहे हैं कि अब मैं और ज्यादा तैयार हूँ आपके एलियोरमेंट्स को झेलने के लिए, और मैं झेल जाऊंगा। और अगर दीक्षा के बाद कोई सेकेंड इनिशिएशन लेता है तो वो और ज्यादा माया को चैलेंज कर रहा है, और फिर अगर वो संन्यास लेता है फिर तो बोल रहा है कि माया देवी आप मेरे साथ फुल ऑन खेलिए, मैं आपको आपके ऑब्स्टेकल्स को पास कर जाऊंगा। इन दिस रिगार्ड देयर इज द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि की स्टोरी सुनाते हैं कि वो अपना किंगडम छोड़ के चले गए थे योगा प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। At that time, the meditational yoga was possible to execute. Vishwamitra Muni meditated so intently that Indra, the king of heaven, noticed him and thought, "This man is trying to occupy my post." तो विश्वामित्र मुनि इतनी इंटेंस तपस्या कर रहे थे कि उन्हें इंद्र की गद्दी भी मिल जाती। इसलिए इंद्र क्या हो रहे थे, उनसे जेलस हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये इतनी तपस्या कर लेंगे तो मेरी जो गद्दी है वो चली जाएगी। The heavenly planets are so material and there is competition. No businessman wants another businessman to exceed him. Fearing that Vishwamitra Muni and would actually depose him, the Indra sent one heavenly society girl named Menka to allure him sexually. तो ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हेवनली प्लैनेट्स जो है ना वहां पे भी सब कुछ मटीरियल ही है, वहां पे भी ऐसे कंपटीशन चलता है। केवल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से कम्पीट नहीं करता। बाकी जितने भी मटेरियल प्लैनेट्स हैं वहां पे यही चल रहा है जो मटेरियल वर्ल्ड में चल रहा है। Menka was naturally very beautiful, and she was intent on disrupting the Muni's meditation. Indeed, he became aware of her feminine presence upon hearing the sound of her bangles, and he immediately looked up from his meditation, saw her, and became captivated by her beauty. As a result, the beautiful girl Shakuntala was born by their conjugations. So, जब उन्होंने मेनका को देखा विश्वामित्र मुनि ने, तो वो
एजिटेटेड हो गए उसे देख के, और फिर उन दोनों के कॉन्जुगेशन से कौन आया, शकुंतला ही। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि को ये रियलाइज हुआ कि मैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करने में लगा हुआ था, लेकिन मैं फिर से माया देवी के जाल में फंस गया, तो वो फिर उन्होंने वापस सब कुछ छोड़ के अपने सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में लग गए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाली ये है कि विश्वामित्र मुनि जो इतनी इंटेंस तपस्या कर रहे थे, उनका भी फॉल डाउन हो सकता है। तो हम जैसे लोगों का फॉल डाउन बहुत इजी बात है, लेकिन इस फॉल डाउन से बचने का क्या तरीका है? हम तो नहीं बच सकते, क्योंकि हमें इतनी स्ट्रेंथ है नहीं अभी कि हम माया देवी के हॉकीज को झेल जाए। हमें क्या करना है? शुद्ध भक्तों के चरण में रहना है, जो ऑलरेडी माया देवी को ट्रांसेंड कर चुके हैं, वो इन तीनों गुणों से ऊपर है। अगर हम उनके एसोसिएशन में रहेंगे, हमेशा उनके शेल्टर में रहेंगे, तो हम आराम से इन चीजों को झेल सकते हैं। बाकी अगर हम अपने स्ट्रेंथ पे इतना भरोसा करेंगे कि हम सब कुछ झेल जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे? प्रिया माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी। Thus there is every chance of failure on the yogic path. Even a great sage like, यहीं से पढ़ना है ना? हाँ जी माता जी। Even a great sage like Vishwamitra can fall down due to the material allurement. Although the Muni fell for the time being, he again resolved to go on with the yoga process, and this should be our resolve. Krishna informs us that such failures should not be the cause of despair. There is a famous proverb that failures is the pillar of success. In the spiritual life, especially, failure is not discouraging. Krishna very clearly states that even if there is a failure, there is no loss either in the world or in the next. One who takes this auspicious line of spiritual culture is never completely vanquished. तो यहाँ पे है, thus there is every chance of failure on the yogic path. Even a great sage like Vishwamitra Muni can fall down due to material allurement. Although the Muni fell for the time being, he again resolved to go on the yoga process, and this should be our resolve. तो क्या होता है ना, कभी कभी डिवोटीज का फॉल डाउन हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बार बार यही हो रहा है। लेकिन ये सब ना हमारी सिंसियरिटी चेक करने के लिए हो रहा है कि हम सच में सिंसियर हैं कि नहीं। अगर फॉल डाउन हो भी रहा है तो हमें वापस से लग जाना है नेक्स्ट डे। ये स्ट्रगल जो है ना, ये बहुत ब्लिसफुल स्ट्रगल है, कृष्णा के जो स्ट्रगल है, तो इसको कभी छोड़ना नहीं है। कृष्णा इन्फॉर्म्स अस दैट सच फेलियर should not be cause for despair. There is the famous proverb that failure is the pillar of success. In the spiritual life especially, failure is not discouraging. Krishna very clearly states this world or in the next, one who takes the completely vanquished. तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल चीजों के लिए एंडेवर कर रहा है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, उसका कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, वो कभी भी वैंक्विश नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट कृष्णा बताएंगे कि अभी तक तो बता रहे थे कि वो उन्हें अनसक्सेसफुल